حالات حاضرہ کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں ہمایوں. اس پروگرام میں ہم ملتے ہیں, مختلف موضوعات پہ بات ہوتی ہے, اور موسم بدل رہا ہے, سرما کی جانب جا رہے ہیں, سردی آ رہی ہے, اور سردی میں کچھ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے, کپڑے بڑھ جاتے ہیں, تھوڑی چلنے پھرنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے جب برف پڑے. لیکن ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ سنانمس ہے سردی میں, وہ ہے پاور کرٹیلمنٹ, بجلی کی آنکھ میں چولی, ہائیڈ اینڈ سیک. سمر میں بھی ہوتا ہے لیکن ونٹر میں زیادہ ہائیڈ سیک کم ہوتا ہے, تھوڑا یہ فرق ہے. لیکن اس سال ونٹر میں ایک اور چیز پاور ڈپارٹمنٹ ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں. وہ آئے ہیں سمارٹ میٹرز لے کے. وہ کہتے ہیں جب سمارٹ میٹرز لگیں گے تو پاور میں بہتری آ جائے گی. کس طرح آئے گی, سمارٹ میٹر کیا ہے, اس سے کیا فائدہ ہے, اسے کیسے لگایا جائے گا, اس کا استعمال کیسے ہوگا, ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ یہاں ولی محمد میر صاحب بیٹھے ہیں, سپرنٹینڈنگ انجینئر ہیں اور جیسے لیکن نوڈل آفیسر ہیں سمارٹ میٹرز کے. آپ کا خیر مقدم ہے دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں. شکریہ جی. اور ہمارے ساتھ یہاں سرکردہ صحافی قیوم صاحب, شیخ قیوم, اور IANS کے چیف ہیں, بیورو چیف یہاں ہیں, آپ ان سے واقف ہیں, ان سے بھی بات ہوگی. تو پہلے ولی محمد میر صاحب آپ سے اسمارٹ میٹرز کے حوالے سے بات کریں گے, پھر تھوڑا سا پاور سینیریو بھی ٹچ کریں گے. یہ جو اسمارٹ میٹرز ہے یہ آج ہم نے سنا ہے, شاید بہت سے لوگ آج پہلی بار سنیں گے, اور جب نئی چیز سنتا ہے تو پہلی چیز ہوتی ہے تھوڑی کرائسس کریٹ ہوتی ہے. آپ وہ دور کریں بتا کے. شکریہ قیصر صاحب, آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں اپنی بات رکھنے کے لیے. یہ جو سمارٹ میٹرز تو لگاتے آئے ہیں, بہت ٹائم سے لگاتے ہیں, کیونکہ اب ہر چیز سمارٹ بن رہا ہے, سمارٹ سٹیز بن رہے ہیں. تو آج ہم میٹرز پر بھی سمارٹ میٹرز لگا رہے ہیں. سمارٹ میٹرز میں ایک خصوصیت ہے, اس میں سر جسٹ جیسے آپ کے موبائل میں سم ہوتا ہے, سمارٹ میٹر میں سم ہوتا ہے. یہ پورا ڈاٹا جو ہے, یہ ڈاٹا اپنے ڈاٹا سینٹر کو ٹرانسفر کرتا ہے. جو سمارٹ میٹر اس کے لیے مطلب اس کو ہم پروگرامنگ کر سکتے ہیں, اس کو پری پیڈ بھی ہم بنا سکتے ہیں, پوسٹ پیڈ بھی کر, جیسے فون ہمارے ہیں. جو میٹر لگے گا وہ پورا مطلب اگر اس کے ساتھ کوئی چھیڑے گا یہ بھی دکھائے گا کہ اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کی کوشش کی گئی ہے. اور اس میں ایک جیسے اگر پری پیڈ میٹر ہوگا یا پوسٹ پیڈ, اس میں لکھا جیسے ہمارا ایگریمنٹڈ لوڈ ہوگا, فرض کرو 3 میگا واٹ 4 میگا واٹ, اس میں ہم جب سیٹنگ کرتے ہیں میٹر کی, اس کی سیٹنگ اس سے زیادہ کرتے ہیں, چونکہ ایگریمنٹڈ لوڈ سے تجاوز کرتے ہیں, نارمل میں فلکچویٹ ہوتا ہے لوڈ, اس کے لیے بھی سیٹنگ ہوتی ہے. اگر سیٹنگ جہاں پر ہوتی ہے وہاں سے آگے یہ سپلائی نہیں دے گا. اور بلنگ میں پری پیڈ میں بھی کر سکتے ہیں, اگر پری پیڈ میں کسی کی کوئی 2000 روپے بل بھرے گا پری پیڈ میں, 2000 ختم ہوں گے تو سپلائی کٹ ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے ایک ایپ ہوگی آپ کے موبائل میں ہوگی, یہ دکھائے گا پورا کہ آپ کے اس میں کتنے پیسے ہیں, آپ نے پچھلے 24 گھنٹے میں کتنی بجلی استعمال کی, آپ کا میکسیمم لوڈ کیا آیا, مطلب پورا. اس میں ہیومن انٹرونشن کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ سڈنلی بیٹھ جائے گا, ہم ایپ پہ دیکھ سکیں گے ہم نے کتنا خرچہ ہے اور کتنا باقی. پورا ایپ پر آپ کو پوری انفارمیشن ملیں گی. مطلب یہ ہے اس میں. اور جو ہم انشاءاللہ یہاں سری نگر میں ہمارے جو پہلے ہم کچھ 57,750 یہ میٹر ہم نے لگائے, نہیں کنزیومر تو 2 لاکھ ہے سری نگر میں. یہ ہم لگا رہے ہیں فرسٹ انسٹنس میں. ہم نے کچھ 46 جو فیڈرز ہیں مختلف علاقوں کے, وہ ہم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ان کا لسٹ جو ہمارا REC PDCL جو دہلی کی ہے اس کو ہم نے دے دیا ہے. اس کی تقریباً 35,000 کی سروے مکمل ہو گئی ہے, باقی کی سروے بھی ہو رہی ہے. یہ لگیں گے سری نگر کے مختلف علاقوں میں. جی میر صاحب, میں قیوم صاحب کے پاس آؤں گا. اس سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ان کے لیے بھی نئے پول لگائے جائیں گے, کیونکہ ہر سال ہم نئے میٹر کے ساتھ نئے پول لگاتے ہیں؟ نہیں, ایکچولی جہاں پول لگا ہے یہ وہی اسی پول 2 4 ایک ہی پول پر لگیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ پول پر ہی لگ جائے. اگر کہیں اب پول میسر نہ ہو یا کچھ ہو, کسی جگہ ہم تھوڑا کسی کے دیوار پر بھی لگا سکتے ہیں. کیونکہ پچھلے 3-4 سال میں ہم نے 3-4 بار میٹر بدلے ہیں, تو اب پتہ نہیں اسمارٹ میٹر کتنے دیر اسمارٹ رہے گا. قیوم صاحب دیکھیے قیصر صاحب, ایسا ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کی ریزسٹنس ہوتی ہے. جی ہاں, وہ نیچرل ہے. جی, مگر اس کے باوجود ہمارا تجربہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں نئی آئیں اور پرانی ہو گئی, اور فرق گراؤنڈ پہ کچھ نہیں پڑا. دیکھیے جب پچھلی بار انہیں میٹرنگ کی تھی تو ہم سے کہا گیا کہ اب میٹرنگ کے بعد کرائسس ختم ہو جائے گا. نہیں ہوا. میں نے میر صاحب سے صرف یہ پوچھنا ہے, یہ جو سمارٹ میٹر ہے یہ بائی پاس ہو سکتا ہے کہ نہیں. جس طرح آپ کا آج کا میٹر جو ہے, اس کو ہم نے کہا کہ پلفریج ہو رہی ہے کیونکہ یہ بائی پاس کیا جاتا ہے ود the connivance of some unscrupulous staff.
क्या स्मार्ट मीटर बाईपास हो सकता है? कोई साहब ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बाईपास तो हर चीज़ होता है लेकिन ये जो हमने जो स्मार्ट मीटर हम लगा रहे हैं, हम थोड़ा प्लानिंग से लगा रहे हैं। हम वहीं पर स्मार्ट मीटर लगाए जहां हमारी केबलिंग हो जाएगी। हमारा केबलिंग का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। जिस जगह केबलिंग हो जाएगी, एलटी केबलिंग हो जाएगी, क्योंकि केबलिंग जो फिर कोई हुक ही नहीं कर पाएगा। तो मेरी कितनी केबलिंग हुई है? एक मिनट, मेरी मीर साहब अर्ज है, अगर केबलिंग करनी थी पुराने मीटरों की केबलिंग क्यों नहीं की गई? बेसिकली उसमें देखिए सर, ये कोई प्रोजेक्ट होता है, जब प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है, ये बनाते हैं प्रोजेक्ट, उसमें टाइम लगता है सैंक्शन, उसमें जो पैरामीटर्स है सैंक्शन होते हैं। क्योंकि अब जो है इसमें केबलिंग भी है, जिस फीडर पर केबलिंग हो रही है या हो गई है, उसी फीडर पर कहाँ हुई है केबलिंग? केबलिंग बहुत जगह पर श्रीनगर में हुई है, क्योंकि हमारा टेस्टिंग जो ग्राउंड है वो जवाहर नगर है और 1-2 इलाके, हर तरह के मीटर वहीं टेस्ट किए जाते हैं। तो ये वहीं टेस्ट हो रहा है? नहीं, हर जगह हो। अच्छा, मैंने कहा जवाहर नगर के बगैर भी, जवाहर नगर में हमने एक फीडर लिया है, ऐसे हमने एग्जिबिशन से ले लिए हैं, रावलपुरा से लिए हैं, इवन सोवरा से लिए, सोनावार से लिए, आपका यहाँ टीआरसी से लिए है, हर जगह हमने बेमिना से लिए, 2-2, 3-3 फीडर हर जगह से ऑलमोस्ट लिए। तो इस मीटर के बारे में जो कंज्यूमर है वो ट्रेन कैसे होगा, वो समझेगा कैसे उसको? तो ये जो उसके लिए हमने मतलब पहले तो लोग रीडिंग देखते थे, भाई हमने कितना खर्चा किया है। अब ये जरूरी नहीं है, उनके मोबाइल में हम ऐप दे देंगे, डिजिटल है। हाँ, ऐप दे देंगे, पूरा उनको मोबाइल में आएगा, पूरी इंफॉर्मेशन उनको आएगी। इवन हेल्पलाइन भी उसी के साथ, किसी को प्रॉब्लम होगी ये क्या। तो कई ऐसे में अभी जो प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो मीर साहब ने कहा कि इससे हमारी डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई इंप्रूव होगी, क्योंकि पिलफरेज लोग नहीं करेंगे और लोग बहुत किफायत शारी से पावर का इस्तेमाल करेंगे। मगर मेरा मानना है जब तक सारी वैली, सारे जे&के में पूरी केबलिंग ना हो, स्मार्ट मीटर नहीं लगे, उससे सप्लाई और डिमांड किस तरह इफेक्ट होगी? मैं अर्ज करूंगा इसमें कि जो हमारी पूरी वैली में करनी है, क्योंकि फिलहाल हम टाउन्स में कर रहे हैं, क्योंकि 40% हमारा पावर कंजप्शन श्रीनगर में होता है, बाकी जो 30% है बाकी टाउनों में होता है, रूरल में वही 20-25% देते ही कम है, तो करेंगे क्या? अच्छा, पहला हमारा जो टारगेट है, जहां हमारी ज्यादा पावर कंजप्शन है, मतलब सिटीज एंड टाउन्स, ये करेंगे। और जो हमारे पूरे 4,21,000 मीटर स्मार्ट लगाने हैं, जिसमें पूरे सब टाउन्स आ रहे हैं, मतलब श्रीनगर के अलावा अनंतनाग आ रहा है, कुलगाम आ रहा है, शोपियान, पुलवामा, बारामूला, सोपुर, जो भी बड़े बड़े गांधरबल वगैरह जो भी टाउन है, सबों में 4,21,000 लग रहे हैं। लेकिन अभी हम 1 लाख हमें लगाना है, जो पीएमडीपी में आया है, उसमें भी हम 57,750 फिलहाल लगा रहे हैं, और कुछ 25,000 हम स्मार्ट सिटी में भी हमने प्रपोज किए हैं, 25,000। देखिए कयूम साहब का कहना क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बहुत से इलाकों में लगा लें, सारा कवर हो जाए, उसके बाद हम देख सकते हैं कि इफेक्ट क्या हुआ। इस वक्त आप श्रीनगर से तजुर्बाती तौर हाँ, श्रीनगर का टेस्ट डोज देके आप इम्पैक्ट श्रीनगर का लेंगे, लेकिन रेस्ट का तो वही चलता रहेगा। जो है बात है इसमें कैसर साहब, ये जो टाउन का, सिटी और टाउन का रहने वाला, ये कहते हैं ना हर एक चीज मुझे पे क्यों पहले टेस्ट की जाती है, इट्स ए कॉमन मैन्स ग्राउंड। देखिए श्रीनगर में सभी अमीर नहीं है, सही बात। श्रीनगर के बहुत से एरियाज हैं जो बिल्कुल, मीर साहब को पता होगी, बिल्कुल हैंड टू माउथ लिविंग है उनकी, गरीब लोग हैं। डाउनटाउन हमारा देख लें आप, यहाँ हर एक तबका बहुत अमीर नहीं है, वो दिन में अपनी दुकान पे बैठ के या अपनी रेडी लगा के अपना रोजगार करता है। ये कहता है कि यम सारी मुसीबत क्या मे पे स्टार्ट कर। सो अगर इसमें ऐसा करते मीर साहब के डिफरेंशिएशन खत्म करने के लिए, स्टार्ट इट इन सिटीज एंड स्टार्ट इट इन रूरल एरियाज आल्सो टुगेदर, so that this grouse does not remain there. So Shahragam Ladai, Mir Sahib will understand it better. So why should not? Number 2, अगर सिर्फ हम कह रहे हैं कि हमने 2400 या कुछ इतने इनिशियली लगेंगे, उससे पावर सिनेरियो पे कहां फर्क पड़ेगा? पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 57,000। And how much difference will it make to the power scenario? सर बेसिकली क्या है कि जो श्रीनगर की सप्लाई, श्रीनगर में हम नॉर्मली बेटर सप्लाई देख, जैसे अभी आपका ऑलमोस्ट अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चल रही है। कभी किसी वक्त फॉल्ट, को भी 3 घंटे पावर नहीं था सुबह, नहीं वो हम शट डाउन लगा करते हैं, हम भी सैंक्शन करते हैं, कहीं पोल 4 लगानी है, हम मतलब वो शट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर विंटर्स के, कहीं पोल वोल कमजोर है, और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट पीएमडीपी वर्क्स चल रहे हैं।
क्योंकि जब तक हम पावर बंद नहीं करेंगे तब तक हम वो पोल नहीं लगा सकते, तब तक वो केबल नहीं लगा सकते, जब तक कि हम शट डाउन नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम 1-2 दिन पहले पब्लिसिटी भी करते हैं और ये करते हैं, क्योंकि हमारा जो श्रीनगर का कंज्यूमर, हम कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर में मतलब बेटर सप्लाई हो बनस्बत की देहातों। तो आप सारे श्रीनगर को लगाएंगे मीटर? फिर उसके बाद ये स्टार्ट होंगे? नहीं, बेसिकली हम लगा रहे हैं, हम 46 मीटर ये फीडर्स पर लगा रहे हैं। हमारे श्रीनगर में कुछ 221 फीडर्स हैं, पहले हम 46 पर ये लगा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब आप लगाएंगे 46 उसके बाद ऑपरेशनल होंगे, उसके बाद उसी इलाके में देखिए ना आप, फिर वही मसला है कि झेलम के उस पार का इलाका टेस्ट नहीं होगा। कौन सा इलाका? बहुत सारे इलाके हमें पता है कौन से टेस्ट नहीं होंगे। आप टेस्ट जो कर रहे हैं ना वो उसी इलाके पे कर रहे हैं जो ऑलरेडी ज्यादा फीस दे रहे हैं, भी हम जो ज्यादा फीस ऑलरेडी दे रहे हैं, सोवरा जकूरा वगैरह ये साइड हम कर रहे हैं पूरा। देखिए ना बीच का हिस्सा आप छोड़ देंगे, वो अभी भी कम फीस दे रहे हैं, आगे भी टेस्ट नहीं होगा। इसमें जो हमारे बाकी रहते हैं ना फ्लैट रेट वाले, फ्लैट रेट जिनको मीटर नहीं लगा या जो मीटर बाईपास सबको लगेगा, हाँ ये सबों को लगेंगे मीटर, बट इट विल बी स्टेज। मतलब अभी हमारे इतने जो एलोकेशन आई पीएमडीपी में तो ये हम लगा रहे हैं। तो तखमीनन मीर साहब, तखमीनन कितने साल तक कंप्लीट वैली में? सर ये जो मीटर्स है ये 57,000, ये हमें मार्च तक। नहीं मैं कह रहा हूँ तो फिर सारे कंज्यूमर आप कैसे कितनी देर में कवर करेंगे? ऑल ये विदिन 2 years से हमें सब कर रहे हैं कश्मीर। होल वैली विल बी कवर्ड। 2 साल में आप ये कवर करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं मार्च में ये ऑपरेशनल होगा कि अभी होगा? मार्च में ये हम ये स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन ऑपरेशनल मार्च में होंगे, अभी नहीं होंगे ऑपरेशनल? अभी नहीं होंगे, अभी ये लगेंगे, फिर ये सील हो जाएंगे, फिर ये सील हो जाएंगे। मीर साहब ये ऐसा हुआ है कि ये किसी और जगह टेस्ट हुए हों इंडिया में? यस सर, हर जगह, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जो भी सिटीज है या स्मार्ट मीटर्स चल रहे हैं। दिल्ली में आप देखिए मतलब टेरिफ भी डाउन हो गया, वहाँ बिजली बहुत सस्ती हो गई, क्योंकि वो तो मुफ्त दे रहा है बिजली, प्रोलिफरेट कम हो गया सीएम ने देखे ना, वो तो मुफ्त दे रहा है बिजली। मतलब जो प्रोलिफरेट है, फर्ज कीजिए जिसको आप मीटर ही नहीं लगा है, दपान आसमान कशर पे अतुल चुमुत आप तक, हाँ जिसको मीटर ही नहीं लगा है वो बॉयलर भी लगाता है, वो गीजर भी लगाता है, वो सब कुछ लगाता है। अब जब मीटर लगा होता है और वो भी इफेक्टिव मीटर, दूसरा होगा मीटर शाम को हुक करते हैं तो यहाँ से लाते हैं, वो हमें पता है क्या करते हैं। कयूम साहब एक बात है इसमें कि आज के मीटर का जो रेट है ना मूवमेंट का, कि कितने में कितने यूनिट चढ़ते हैं, तो इस मीटर की क्या रफ्तार रहेगी कि यूनिट कैलकुलेट करने में और आगे बढ़ने में? क्योंकि कोई मीटर तेज होता है, कोई स्लो होता है, कुछ होता है, ये बहुत बातें हुई हैं। कंप्यूटराइज्ड, दे आर ऑल कंप्यूटराइज्ड मीटर्स। नो मतलब ये जो मीटर लगेंगे ये टेस्ट करके ही लगेंगे। नहीं वो नहीं मैं कहता हूँ कि आज अगर आपकी यूनिट की प्रोग्रेस कितनी होगी और यूनिट के रेट क्या होगा फिर इसके बाद, क्या मतलब ये सेल पावर? हाँ हमारा सर इस वक्त देखिए, हम जो पावर हम खरीदते हैं एवरेज में हम 5-6 रुपए पर यूनिट खरीदते हैं, और जो कंज्यूमर को हम देते हैं एवरेज में हम 2.5 से 3 रुपए देते हैं। मतलब किनको? जो हमारे घरेलू कंज्यूमर है, मतलब इसमें कैटेगरीज है, घरेलू और कोई कमर्शियल है, कारखानादार है, उनको टैरिफ अलग अलग है। कमर्शियल को हम देते हैं उससे महंगे में, मतलब उनको देते हैं 4 रुपए में यूनिट, इनको देते हैं 2.5 रुपए में जो हमारे है। और उसमें हमारी सब्सिडी 68% सब्सिडी है, सब्सिडी कंपोनेंट है इसमें। इसलिए मतलब जो तकरीबन 4-5 रुपए की बिजली जलाता है उसको 1 रुपए की हम बिल बेचते हैं। 68% ऑलरेडी उसमें लो है, और 68 जो फिर लो होके फिर 32% बचते हैं। 32% में भी फिर लोग चोरी करते हैं। उसका मतलब है 5 रुपए के हम मतलब 5 रुपए का 1 रुपए भी हमारे पास नहीं आता है। तो कयूम साहब आप पूछ रहे थे सिनेरियो की, ओवरऑल पावर सिनेरियो इस वक्त आप बोले, देखिए लास्ट ईयर जो बिल्कुल ही खराब हालत हो गई विंटर आते ही जी। इस साल आपको क्या लग रहा है मीर साहब, क्या है हमारी पोजीशन? पहले हम पावर की बात करें फिर वो बेचने की बात करें। सर बेसिकली इस साल तो गवर्नमेंट जो हमारी है जम्मू कश्मीर की बड़ी पर्टिकुलर है अबाउट प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ड्यूरिंग विंटर्स इवेंट। अब इसमें सप्लाई मतलब डिमांड और अवेलेबिलिटी हमें देखनी, क्योंकि सर्दियों में हमारी डिमांड पीक डिमांड 3000 मेगावाट तक पहुंचती है, और रेस्ट्रिक्ट करके 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 वो फिर भी 2100-2200 मेगावाट तक रहती है। लेकिन जो हमारी अवेलेबिलिटी पिछले साल तक, पिछले सर्दियों में हमारी अवेलेबिलिटी 1200 से 1300 मेगावाट होती थी, और इस साल हमारी अवेलेबिलिटी 1500 मेगावाट है, क्योंकि हमारे यहाँ
1-2 ग्रिड नए बन गए, तो तरसीली लाइनें कुछ नई बन गई, ट्रांसमिशन लाइन्स, इससे हमारी जो है 200-250 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ गई। तो इंशाल्लाह मतलब वी आर होपिंग इट विल बी ए बेटर विंटर। वो तो आप आसमान पे छोड़ रहे हैं क्या, यहाँ नेचर पे पे मैं नेचर पे छोड़ रहे हैं आपके क्या? होप नहीं नहीं, पे- नेचर पर नहीं। अच्छा। हम कहते हैं होप पे मैं यहाँ पे ज़िमनन जो इस प्रोग्राम के साथ कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, हमारे नेशनल हाईवे जो श्रीनगर ले हाईवे उस पर एक ब्रिज बन रहा है, वाइल ब्रिज, आपने सुना होगा, दैट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक सही ब्रिज, है। डिफेंस रोड है, सब कुछ है, वो पिछले 20 साल से बन रहा है। अब देखिए उसका अलॉटमेंट भी हो गया है, वर्ल्ड बैंक से पैसा भी आ गया है, ठेकेदार साहब आज करेंगे स्टार्ट, कल करेंगे स्टार्ट। सो प्रोजेक्ट्स द ईट प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। देखिए वाइल ब्रिज पे वर्ल्ड बैंक ने दे दिए 5 करोड़, 18 करोड़, 3 हुकूमतें बदल गई, तीनों हुकूमतों ने उसका जश्न मनाया कि पुल बन रहा है। पुल कभी नहीं बन रहा, आप कभी तकलीफ करें कंगन की साइड आए 4 घंटे आपको वाइल ब्रिज पे रुकना पड़ेगा। सही है। सो हुकूमत के प्रोग्राम ऑन पेपर सभी अच्छे होते हैं। मैं इसलिए मीर साहब से पर्सनली नहीं, मैं पर्सनली सी जो पावर कंज्यूम करता है ही मस्ट पे, सही, इसमें एग्जैक्टली कोई दो ओपिनियन नहीं है। जब फोन हमारा बंद हो जाता है हम दौड़ के जाते हैं इसको रिचार्ज बिल्कुल करते हैं। है। तो बिजली बंद होकर क्यों नहीं रिचार्ज करे इंसान। सही। मगर जहां पे जो इकोनॉमिक सिनारियो, देखिए गरीब की गुर्बत भी आपने देखनी, मीर साहब को पता होगा उस बेचारे के पास एक लाइट है, लाइट उसके पास एक ही बत्ती है, एग्रीमेंट शायद 2 का होगा या एक ही बत्ती, मगर वो रुक नहीं सकता बॉयलर यूज करने से। आई एम टेलिंग ह्यूमन एस्पेक्ट भी इसमें देखना पड़ेगा आपने। सम पिल्फरेजेस आर परमिसेबल इन द सेंस नॉट दैट दे आर लीगल, बट नजरअंदाज कर सकते हैं। गरीब ने देखा, ये Survival देखा के लिए। गरीब के पास है, ये कहते हैं चलो दोबारा नहीं लगाना। यहाँ पे जो आसूदा हाल लोग हैं वो असली पिल्फरेज होती है, वहां पे बड़े घरों में Colonies में। वहां पिल्फरेज होती है। और वो इतने इन्फ्लुएंशियल है कि उनके कभी, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है गरीब बेचारे का हीटर ले जाते हैं। मैंने बहुत दफा देखा इनकी गाड़ियां जाती हैं, वो रेड करके आती हैं, तथ्य आसान तिम हीटर तिम बाहर हीटर ये बहुत से इलाके हैं जहाँ कभी जाते ही नहीं है। अच्छा, एक बात हो गई है जो इनने कही कि पावर सिनेरियो में ऐसा है कि आपको कुछ देखना पड़ेगा। अब ये जब ये मार्च में लगेंगे तब तक, मार्च तक हमारा यही सिस्टम चलेगा। मार्च में आप कहते हैं कि 57,000 लग चुके होंगे तो ऑपरेशनल होंगे। वी विल स्टार्ट इट इन नवंबर। मतलब जो इसमें कंपनी आई है वो कहते हैं कि 15 मार्च उनके जो सर्वर वगैरह वो सब इंस्टॉल हो गए यहाँ हमारे डाटा सेंटर में। 15 नवंबर से वो स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने सर्वे दे आर स्टार्टिंग। मतलब इट विल बी कंप्लीटेड बाय मार्च। और जो इलाके कंप्लीट हो जाएंगे वो ऑपरेशनल होंगे। वो ऑपरेशनल, वही मैं पूछ रहा था क्योंकि आपकी will be बातों से पता completely- चला कि मार्च में स्टार्ट इट होगा। विल मार्च बी में वो कंप्लीटेड, operation इट विल बी कंप्लीटेड बाय मार्च। मतलब जो हमारे 57,000 46 फीडर्स आपने उठाए 57,000 मीटर, दे विल बी कंप्लीटेड बाय बट मार्च। जहां फीडर लग गया वहां ऑपरेशनल होगा। वहाँ ऑपरेशनल हो गया उसी के साथ नेचुरली। ये तो बड़ी बात है कि हाँ। आप कह रहे हैं कि मैं इस इलाके में रहता हूं, यहाँ ये ऑपरेशनल है, मेरे साथ वाले में नहीं है, बिल्कुल इन्हें मेरे इस गली के बाद में नहीं है। इसका भी तो 4 ये दिन के भी- बाद ये- लगेगा, इसका भी नहीं, ये भी ऑपरेशन एक हो डायमेंशन जाएगा। हो जाती है ना, ये तो इससे थोड़ा फ्रिक्शन वही पैदा हो जो जाता मैंने है। पहले बात की। Friction नहीं, पैदा। मेरा आप ये मानना, आप मुझे बोले मीर साहब जो आपने 57,000 लगा रहे हैं मीटर, एस्टिमेटेड कितना आपको इससे पावर, फायदा कितनी होगा? बिजली बचेगी हम? सर ये तो सारिफिन पर है कि वो कितना नहीं खर्च नहीं, करना आपको तो चाहेंगे। पिलफरेज का अंदाजा है नहीं, ना? आपने कुछ सर्वे किया, कुछ यस सर, estimate नहीं, लगाया? बिल- Pilferage का तो इनके पास clear अंदाजा है। देखिए हमारे पास हमने एक और, मैं आपको ये मतलब इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमने और कश्मीर में 100 फीडर उठाए जी, जिनका 75% हमारे AT&C लॉस होते हैं, लॉसेस ट्रांसमिशन लॉस हमारा बहुत ज्यादा है, हाँ। बहुत ज्यादा है। तो हमने वो मतलब हमारे 951 फीडर है टोटल कश्मीर में, उसमें से हमने 100 फीडर सिलेक्ट किए जिनमें 70 से 80% के दरमियान ट्रांसमिशन लॉसेस है। तो ये हमने इन फीडरों पर हमने जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को केबलें हम चेंज करेंगे। इवन जहां हमें लगेगा ट्रांसफार्मर भी हम चेंज करेंगे। उनमें स्विचेस लगा रहे हैं, मतलब पूरी जिसकी जितनी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है उसी हिसाब से स्विच भी है, उसी हिसाब से केबल भी है, ताकि सब कुछ इंटैक्ट, ऐसा ना हो कि कल केबल जल जाएगी तो या स्विच जल जाएगा। और जो वहाँ का स्टाफ है, हमने पूरा मंथ ये वीकली हम उनको दे रहे हैं कि आपने क्या किया अच्छा, और उस पर एनर्जी कितनी जा रही है, पिछले साल से ज्यादा है आ रही है या कम आ रही है, इसमें रेवेन्यू कितना आ रहा है। मतलब ये हम
اور اس کا بھی میں خوش قسمتی اس کا بھی پھر نوڈل آفیسر بنایا گیا. مجھے بولیں یہ جو سمارٹ میٹرنگ ہے اس کا اور پی ڈی ڈی کے ان بنڈلنگ کا کوئی ریلیشن شپ ہے؟ نہیں, نتھنگ. یہ جو ہے مطلب ان بنڈلنگ الگ سے ہے, وہ الگ سے ہے. اب تو پرائیویٹائزیشن کے بعد بھی ہو, لیکن ہم چاہیں گے کہ جو ہماری کارپوریشن اس وقت ہے یہ فائدہ بخش کارپوریشن ہو, کیونکہ اس میں اگر حقیقتاً مطلب ہم محنت کریں گے, لوگ بھی تعاون کریں, کیونکہ یہ لوگوں تک ہے. لیکن اس میں ایک بات بتائیے, آپ کا ایوریج ٹرانسمیشن لاس کیا ہے؟ پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کراتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ہمارا اس وقت ہے جو ہمارا 55 سے 65 تک. ملک میں 35 ہے جو ہمارا نیشنل ہے, نیشنل ہے وہاں 20 to 25%. ہمارا تو میکسیمم ہے. کیوں ہے؟ بیسیکلی یہاں تو ایک نامصائب حالات بھی آپ کو پتہ, یہاں کا ٹرین بھی ہمارا ایسا ہے. مطلب جہاں آپ دیکھیے لداخ, اب تو لداخ تو الگ اب یونین ٹیریٹری بن گئی, یہاں کی جو علاقے ہیں, یہاں ہمارا ٹرین جو ہے کشمیر کا ایسا مختلف, یہ ٹرین کسی کے پاس نہیں. مطلب تاروں پہ ٹرین سے اثر پڑتا ہے نہیں, کنڈنسر لاسز ہوتے, درختوں سے جاتی ہے, لانگ لائنیں جاتی ہے. جب لانگ لائن جاتی ہے اس میں زیادہ پاور لاس ہوتا ہے. اور ہم بھی جیسے قیوم صاحب نے فرمایا, ہم ناردرن گریڈ کے ٹیل پر ہیں, اس سے بھی ہمارا لاس آ رہا ہے. ہماری وولٹیج بہت کم آ رہی ہے, ہماری کرنٹ بڑھ رہی ہے, اس سے ہمارا لاس. تو آپ کا سٹاف کتنا اس کے لیے ایکوپڈ ہے جو آپ اسمارٹ میٹر لا رہے ہیں؟ یہ سر جو فی الحال جو اسمارٹ میٹر ہماری ایک REC-PDCL لگا رہے ہیں, دے ول مین اٹ فار 5 years. ہمارا اسٹاف بھی ان کے ساتھ رہے گا, بٹ دے ہیو ٹو مینیج اٹ. مطلب کہیں مینٹیننس بھی کرنی ہے, دے ہیو ٹو مین اٹ فار اے مطلب ڈیفائنڈ پیریڈ. تو وہی کر رہے ہیں ہمارا اسٹاف بھی. اور ہم مطلب ہمیں یہ امید ہے کہ ہم وی ول بی مطلب گیننگ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. دیکھیے گین تو اچھا, اگر ہمیں بھی جیسے قیوم صاحب آپ کہہ رہے تھے اگر ہمیں پاور رہے گا, بالکل, تو کیا لگتا ہے پاور رہے گا؟ دیکھیے میں تو اس بارے میں پیسمسٹ رہا ہوں آلویز. بہت سے پروگرام کیا ہم نے, پچھلی بار ہم نے حشمت صاحب کے ساتھ پروگرام کیا تھا, تو اس وقت پھر بولا تھا کہ اب دیٹ curtailment and these cut shortings and everything shut downs are nothing of the past. ابھی تک ہوا نہیں. میں ان کو ڈائریکٹلی اس میں مورد الزام نہیں سمجھتا, ان کے اپنی ہارٹ they are also constant because he is also a local. یہ خود بھی چاہیں گے کہ پاور چلے, صحیح بات, مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں مجھے لگتا ہے نا ان کے دسترس میں ہے نا ہماری دسترس میں. something will have to be done on a massive scale. اب دیکھیں میٹرنگ, I agree, یہ کس لیے کرے؟ یو آر اونلی چیکنگ pilferage. ایگزیکٹلی, یو آر ڈوئنگ نتھنگ ایلس, یو آر چیکنگ pilferage. ہمارے جنرلی یہاں جنریشن ختم ہو جاتی ہے, لوکل جنریشن رہتی نہیں ونٹر, یور واٹر گوز ڈاؤن, یور جنریشن. سو وی ہیو ٹو گو ود دا بیگنگ باؤل اینڈ وی ڈونٹ ہیو دا منی ٹو بائی سو مچ پاور. سو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وی شوڈ تھنک ان دوز ٹرمز آلسو. میٹرنگ کی تو چلے گی, میٹرنگ سے pilferage چیک ہوگی, بٹ انلیس دا گیپ بٹوین سپلائی اینڈ, دیکھیں اگر 100% بھی pilferage چیک ہو جائے, میر صاحب ول ایگری, تو بھی سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ رہے گا میر صاحب کہ نہیں رہے گا؟ سبھی اگر نو ہمارے پاس اس وقت جو ہمارے پاس ہے نا قیوم صاحب, ہمارے پاس جو ایگریمنٹڈ لوڈ ہے وہی مطلب 1100 میگا واٹ کے قریب ایگریمنٹڈ لوڈ. جو ہماری ڈیمانڈ ہے, ریسٹرکٹڈ ڈیمانڈ, وہ 2100-2200 میگا واٹ ہے. تو لیتے آپ 1400, ہاں 1500 ہم دیتے ہیں, کیونکہ جو کنٹریکٹ ہے وہ اتنا ہی ہے, کنٹریکٹ تو اتنا ہی ہے, اسی لیے مطلب وہی ہے جو ایگریمنٹس. ابھی ہم ریویژن آف ایگریمنٹس بھی کر رہے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, پتہ نہیں اخباروں میں بھی آیا ہے کہ فیس بڑھا رہے ہیں, ایگریمنٹ بڑھا رہے ہیں, چونکہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ہمارا اسٹیٹ کا جو مطلب اپنی یونین ٹیریٹری کا جو ہمارا جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کراتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ
हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां खसारा है तकरीबन सालाना 4,000 करोड़ रुपए का हमारा ये पावर पर जो हमारा खसारा क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया को पावर दे रहे हैं ना हाँ। अपने बदले। तो इसलिए हम ये कम करना चाहते हैं जी एंड गिविंग बेटर सप्लाई। इस साल हमारे विंटर के लिए मतलब इस साल हमने रखा है पूरे जो मतलब पोल तार वगैरह, क्योंकि पिछले साल जब अनटाइमली वो बारिश हुई थी तकरीबन 6 नवंबर को हुई थी, 3 नवंबर को हाँ उससे पहले एक साल 6 नवंबर को हुई, तो हमारे पास कुछ नहीं था। मतलब दरख्त इतने सफ़ेद वगैरह लाइनों पर गिर गए, तो हमें 4 दिन 5 दिन लग गए वो उठाने के लिए। देखिए फिर भी श्रीनगर में अब दरख्त कम है, जी, ताहम श्रीनगर में फिर भी रेस्टोर हमने जल्दी मीर साहब जल्दी ऐसी बात है कि ये हमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी हर साल कहता है हम तैयार हैं, फिर कहते हैं बर्फ़ पड़ गई, हमें पता ही नहीं था विंटर में बर्फ़ पड़ती है। तो ये कोई मसला नहीं है, इस साल भी वैसा होना है, हम उम्मीद करेंगे ना हो। एक और बात जैसे आपने कही कि आपने कंज्यूमर से लेना है वो करना है ताकि हालात ठीक हो जाएं, सुधर जाएं, बाकी हो जाए, आप पे कर्जा ना रहे। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो आता है फिर से यहाँ जो हमारा ट्रांसमिशन लॉस है उसके लिए हम कौन सा एक्शन लेते हैं। हमारे पास ट्रेन को, मौसम को, सर्दी को, गर्मी को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें वहाँ भी तो रोकना है ताकि पावर हमारा ज़ाया ना हो। उसमें यही है सर, जब तक कि केबलिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक एलटी केबलिंग, एचटी की बात नहीं, वो वैसे ही ठीक है, ओवरहेड लाइनें ठीक है। जो एलटी केबलिंग है जहाँ से प्रोलिफरेशन हमारा हो रहा है, नहीं प्रोलिफरेशन नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्रांसमिशन लॉस भी होता है ना। मतलब हमारा जो एचवीडीएस वो छोटे छोटे आपने देखे होंगे शहर में लगे हैं कहीं, वो छोटे 4-4, 5-5 घर को ट्रांसफर जी लगे। एक्चुअली हमारा वो एक था RAPDRP प्रोग्राम विद इन श्रीनगर सिटी, और कहीं बड़े बड़े सिटियों में, वो शहरों में भी थोड़े उसमें थोड़ा वो टेंडर का मसला था। एक कंपनी आई थी EMC, वो भाग गई, फिर हमें दोबारा से नहीं भागेगी इस वाली। नहीं इन्होंने काम कर दिया, क्योंकि हम पिछले 5 साल से लगातार नए कंपनियां भाग रही और लगा रहे हैं मीटर, नए टेंडर्स हो गए, वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हो गए, उस पर भी काम या RAPDRP। तो ये एक और बात है यहाँ कयूम साहब मेरे जहन में आती है कि ये बहुत जगह टेस्ट हुए हैं मीटर, सही बात है, क्या 19 शिद्दत के -14 में ये टेस्ट हुए हैं? ये सर ये जो है ना ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलते हैं। और जो वोल्टेज है, वोल्टेज एक मतलब जो इसमें मतलब आम जो है कम वोल्टेज पर ये नहीं चलते थे, ये 100 वोल्ट के ऊपर ये फंक्शन, तो उतना ही आता है विंटर में। कयूम साहब हमारी जब केबलिंग हो जाए वोल्टेज इम्प्रूव हो जाएगी। आपका आखिरी सवाल। तो आप अब मीर साहब मुझे बोलें, अभी तक जो आपने बात की एज नोडल अफसर बात की आपने पावर सिनेरियो से, बहुत ही खुशाइन, एनकरेजिंग। एज ए कंज्यूमर आप मुझे बोलें क्रॉस योर हार्ट, आपको क्या लगता है हमारी इंप्रूवमेंट होगी? इंशाल्लाह इस साल वही होना जो इंशाल्लाह। पिछले सर्दियों में मैं आपको बताऊंगा सर, पिछले सर्दियों में तकरीबन मीटर्ड में हमारा कट आ रहा था तकरीबन 2-2 घंटे 3 स्लॉटों में हम करते थे मीटर्ड एरिया में, 6 घंटे हम काट देते थे। तो जो अनमीटर्ड था उसमें 3-3 घंटे हम देते थे, 9 घंटे का काट देते थे उसके बगैर। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इस साल बहुत बेहतरी होगी, हम चलिए उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वली मोहम्मद मीर साहब, आप नोडल ऑफिसर हैं स्मार्ट मीटर के, कयूम साहब सरकर्दा सहाफ़ी हैं। आपने स्मार्ट मीटर की बात की कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, लेकिन इन लोगों को आगाह कर दें कि क्राइसिस ना खड़ी हो जाए और लोग ना सोचें कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है। आप पूरी तरह उन्हें समझा दें, उम्मीद करेंगे इससे फ़ायदा होगा और उसके बाद पावर सप्लाई बहाल हो जाएगी, इसीलिए पावर सप्लाई बेहतर हो जाएगी। आज के इस हालात हज़रा के शुमारे से इजाज़त चाहेंगे, मिलते रहेंगे इसमें। खुदा हाफिज़।